हेलो फ्रेंड्स। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के 11th कॉमर्स के चैप्टर नंबर 4 को शुरुआत करेंगे। हमारे इस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, मतलब व्यवसाय संगठन के प्रकार भाग 1। इसमें हम खासगी क्षेत्र में जो संस्थाएं कार्यरत है उसके बारे में जानकारी लेंगे। खासगी क्षेत्र में सभी प्रकार के वैयक्तिक और कंपनी व्यवसाय का समावेश किया जाता है। खासगी व्यवसाय में यह खुद व्यक्ति के मालकी हक के रहते हैं। उसमें जो विशेषताएं हैं वो है नफ़ा प्राप्त करना, उसका व्यवसाय का अच्छी तरह से व्यवस्थापन देखना, खुद मालक के हाथ में सभी हक और अधिकार दिए जाते हैं। यह जो है सभी मालक के इच्छा अनुसार कामकाज या जिम्मेदारियां उठाई जाती है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी लेंगे। Private sector includes all different types of individual or corporate enterprises. Private sector enterprises are owned and managed by the private entities. These private sector enterprises are mostly characterized by certain common characteristics like private incentive, profit motive, ownership and management in private hand, etc. Now, a day, the private sector in the form of corporate industrial units are normally owned by the shareholder and managed by professional managers, where they are not only guided by profit motive but also by expansion, consolidation, social consolidation is social responsibilities, social welfare, etc. प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग हम देखेंगे। द प्राइवेट सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट is run by individual or group of individual to earn profit. प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में 5 संस्थाएं कार्यरत रहती है। उसमें पहली है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड इज पार्टनरशिप, थर्ड इज जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटीज and fifth joint stock company. The importance of private sector in Indian economy can be witnessed from the term thus growth of Indian BPOs, software companies, private banks and financial service companies. The manufacturing industries of India is flooded with private Indian companies. In fact, they dominate the said industry. Manufacture companies covering the sectors like automobile, chemicals, textile, agro foods, computer hardware,
telecommunication equipment and petrochemical products were the main drive of growth. प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पार्ट जो है वो आज हम देखेंगे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, STC, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स there are various forms of business organization. It being from sole trading concern, sole proprietorship is the oldest and simplest form of the organization. The word sole means single and proprietorship means owner. Thus, the name itself suggests that there is only one owner. A sole trader is an independent owner of a business. The proprietor has all right and responsibilities of the business and any profit or loss made. For example, grocery shop, beauty parlor, gift shop, etc. सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मीनिंग है, इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट हीज ओन कैपिटल, यूजेस हीज ओन स्किल एंड अंडरटेक द बिजनेस एक्टिविटीज. ही मैनेज affairs of the business, enjoy profit and bears losses on his own. This form of commercial organization is known as proprietorship. The sole trader, individual entrepreneurship, proprietorship concern or sole trading concern. मतलब इस प्रकार के व्यवसाय में व्यक्ति खुद भांडवल या फिर पैसे लगाते हैं, खुद का ज्ञान इसमें यूज़ करते हैं, व्यवसाय संबंधी सभी कार्य यह खुद पाड़ते हैं। नफ़ा हो या घाटा हो, यह वह खुद सहन करता है। व्यवसाय संगठन प्रकार, दुकानदारी, एकल व्यापारी, व्यक्तिगत उद्योजकता, दुकानदारी संस्था इस नाम से जानी जाती है। एकल व्यापारी यह स्वयं रोजगार का एक उत्कृष्ट नमूना पाया जाता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न की डेफिनेशन अभी हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर J. Hansen, sometimes known as one-man business, it is a type of business unit where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise and for the risk of ownership. J.L. Hansen के मतानुसार जब एक व्यक्ति व्यवसाय के लिए आवश्यक भांडवल का निर्माण करते हैं तो व्यवसाय वह खुद की जिम्मेदारी पर खुद चलाता है। व्यवसाय में जो नफ़ा और घाटा होगा वह उसके लिए खुद जिम्मेदार रहता है, तभी उसे व्यक्तिगत व्यापारी या फिर एकल व्यापारी ऐसा कहा जाता है। सेकेंड डेफिनेशन इज जेम्स लुंडी। इनके मतानुसार द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन बाय वन पर्सन। इसका मतलब
किसी एक व्यापारी ने स्थापन किए हुए एक औपचारिक व्यवसाय जो व्यक्तिगत व्यापार कहलाता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के कुछ फीचर्स हमें दिए गए हैं। अभी फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। पहला इंडिविजुअल ओनरशिप। There is only one owner in sole trading concern. He invests all the capital required for the business. He owns all the assets of business. He also remains responsible for all liabilities of the business. व्यक्तिगत मालकी इसका अर्थ है एकल व्यापारी जो संगठन में एक व्यक्ति की मालकी हक होता है। व्यवसाय में आवश्यक भांडवल वह खुद लगाता है। व्यवसाय की सभी मालमत्ता पर उसका मालकी हक होता है और व्यवसाय में सभी देनी या फिर कर्ज हो तो वह देने के लिए वह खुद जिम्मेदार ठहराया या फिर माना जाता है। सेकेंड इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। अ प्रोप्राइटर इज अ सिंगल ओनर ऑफ बिजनेस. देयर इज nobody to share his profit or losses. He enjoys the profit of the business as well as he bears all risk alone. नफ़े में या फिर घाटे में, धोखे में जब जिम्मेदारी की कोई संभावना नहीं। एकल व्यापारी जो है वह खुद अकेला इस व्यवसाय का मालक होता है। नफ़े और घाटे में वह किसी को भागीदार नहीं बनाता। व्यवसाय में सभी नफ़ा उसको अकेले को मिलता है या फिर जो घाटा है वह भी अकेला सहन करता है। वह जिम्मेदारी जो है वह उसकी खुद की होती है। थर्ड इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द बेस्ट सुटेबल फॉर्म फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. एनी अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस with small capital and earn for his livelihood. He gets a source of income by starting his own business. मतलब स्वयं रोजगार। एकल व्यापारी जो है यह स्वयं रोजगार का एक आदर्श नमूना पाया जाता है। सामाजिक या फिर अनन्य समाज के हिसाब से यह अनन्य साधारण महत्व प्राप्त करता है। कोई ही बेरोजगार व्यक्ति बहुत कम भांडवल में, बहुत कम पैसों में यह व्यवसाय शुरू कर सकता है और अपना खुद का उदर निर्वाह कर सकता है। खुद का व्यवसाय शुरू करके वह उत्पन्न का एक मार्ग निकाल लेता है। फोर्थ इज लोकल मार्केट ऑपरेशंस. लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड एक्सपर्ट managerial ability is required for large scale business. A sole trader has limited capital and limited managerial ability. Hence, generally a sole trader operates in local market. स्थानिक बाजार पेट के कार्य. बड़े उद्योग के तुलना से यह एकल व्यापारी बहुत कम भांडवल में और बहुत कम व्यवस्थापकीय कौशल्य से यह अपना व्यवसाय जो है चलाता है। फिर वो स्थानिक बाजार पेट में कार्यरत रहता है। बड़े उद्योग के लिए बड़े प्रमाण में भांडवल और आधुनिक व्यवस्थापन की कौशल्य होना चाहिए, मगर एकल व्यापारी जो है वो बहुत कम भांडवल में और कम व्यवस्थापकीय कौशल में अपना व्यवसाय चलाता है। फिफ्थ, नो सेपरेट लीगल स्टेटस. अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस इन द आईज ऑफ लॉ. द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस आर कंसिडर्ड वन द सेम.
एकल व्यापारी जो है इस संगठन को एक स्वतंत्र कायदेशीर का अस्तित्व का निर्माण नहीं किया जाता। यह जो है एक एकल व्यापारी तथा एक व्यवसाय माना जाता है। मिनिमम 6 is minimum government regulation. There is no separate act or law govern the activities of sole trading concern. The registration of sole trading concern is not compulsory. Rigid legal formalities are not required for formation. Only the tax law and labor law have to be followed. कम से कम सरकारी नियमन के आधार पर यह एकल व्यापारी जो है संगठन उसका कार्य का नियमन करने के लिए स्वतंत्र कायदा और नियम नहीं है। व्यवसाय की स्थापना के लिए बहुत कठोर और कायदेशीर प्रक्रिया नहीं होती। कर, टैक्स और कामगार इन कायदों का पालन सिर्फ कर टैक्स भरने के लिए और कामगार विषय कुछ कायदे हैं तो उसका पालन करने के लिए यह नियमन करना पड़ता है। लास्ट इज 7th अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। Sole trader has unlimited liability. Unlimited liability implies that there is no distinction between personal property and business property of sole trader. If business assets are not sufficient to pay off liabilities of business, then personal properties a sole trader may be attached to business properties. इसका मतलब है अमर्यादित जिम्मेदारी। एकल व्यापारी जो है यह व्यवसाय में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उठाता है। उसकी खासगी मालमत्ता या फिर व्यवसाय के रूप की मालमत्ता प्रॉपर्टी यह इनमें किसी भी प्रकार की भेदभाव किया नहीं जाता। मतलब व्यवसाय का कर्ज भरने के लिए या फिर व्यवसाय की मालमत्ता कम पड़ रही हो तो वह उसकी खासगी मालमत्ता का उपयोग में ला सकता है। ये थे हमारे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फीचर्स। अभी सोल ट्रेडिंग कंसर्न के हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की जानकारी लेंगे। फर्स्ट इज इजी फॉर्मेशन। मेरिट्स एकल व्यापारी के हम फायदे देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इजी फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न is very easy and simple. Minimum legal formalities are required for its formation. एकल व्यापारिक संगठन की स्थापना जो है ये बहुत सुलभ और सहज पद्धति होती है। इसमें कोई भी कायदेशीर जो तरतूद है उसकी पूर्तता करनी नहीं पड़ती। वह सहज शक्य उसकी परवानगी या फिर उसकी फॉर्मेलिटी जो है वो बहुत ही सीधी और सुलभ मानी जाती है। दूसरा फ़ायदा है क्विक डिसीजन, मतलब त्वरित निर्णय प्रक्रिया। सोल ट्रेडर टेक क्विक बिजनेस डिसीजन। ही मे और मे नॉट कंसल्ट एनीवन. Sole trader is not answerable to anybody. Many times, quick decision in business proves to be very profitable. Sole trader can take quick action and get more benefits. इसमें त्वरित निर्णय प्रक्रिया एकल व्यापारी की जो है यह किसी से भी वह सल्ला मसलत नहीं करता या फिर उसे किसी भी व्यापारी को उत्तर या स्पष्टीकरण देना नहीं पड़ता। हर बार वह निर्णय जो है व्यवसाय के लिए फायदेशीर या फिर अच्छे से सिद्ध होता है। थर्ड इज मैक्सिमम
secrecy. The sole trader is owner and manager of his business, so he may not disclose his business secret and plans with any third person. There is no need to publish book of accounts of sole trading concern, so maximum secrecy can be maintained. अधिकतम गोपनीयता इसका मतलब है इसमें एकल व्यापारी खुद मालक है, खुद ही व्यवसाय प्रमुख है, फिर उसको व्यवसाय की योजना जो है यह गुप्त रखने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती. फोर्थ इज डायरेक्ट मोटिवेशन. Sole trader is owner and manager. He enjoys the whole profit of business. He has direct motivation to earn more profit. He always tries to work hard for more profits. Fifth is flexibility. Being the only decision maker of business, sole trader can make quick change as per the situation. He can expand his business. He may change the line of his business any time. He can change his business policies if required. एकल व्यापारी इस नाते से यह परिस्थितिनुसार व्यवसाय में बदल ला सकता है या फिर अपना व्यवसाय का विस्तार कर सकता है. किसी भी क्षण वह अपनी व्यवसाय की दिशा या फिर स्वरूप बदल सकता है. इसीलिए ये जो है यह फ्लेक्सिबिलिटी जो है यह एकल व्यापारी के व्यवसाय में बहुत ही ज़रूरी मानी जाती है. सिक्स्थ, lower cost. The sole trader is sole manager his business. He control the activities of business. He always try to minimize the wastage, which result into lower cost of operation. कम खर्च. एकल व्यापारी जो है व्यवसाय का खुद मालक होता है. व्यवसाय के सभी कार्यों पर वह खुद नियंत्रण रखता है. इसलिए वक्त, पैसा और श्रम इसका जो है कम नुकसान पाया जाता है. कम से कम नुकसान करने का प्रयत्न वह करता है. इसलिए खर्च में बहुत ही बचत होती है. सेवेंथ इज एफिशिएंसी. एज सोल ट्रेडर एंजॉय द होल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. ही ट्राई मैक्सिमम हिज प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज इन हिज बिजनेस. ही अवॉइड वेस्टेज लाइक वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम, मटेरियल एंड एफर्ट्स. कार्यक्षमता. एकल व्यापारी जो है वह सभी नफ़ा जो है व्यवसाय का वह खुद लेता है, उसको खुद को मिलता है और नुकसान के लिए भी वह खुद जिम्मेदार रहता है. तो व्यवसाय में कम नुकसान करके वह नफ़ा बढ़ाने के लिए अधिक प्रयत्नशील रहता है. वक्त, पैसा और श्रम इसका सभी जो नुकसान है वह कम करता है. डिमेरिट्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अब हम दोष जो है वह जान लेंगे. फर्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल. एज सोल ट्रेडर इज a single owner, his capacity for raising capital is limited. He may raise capital from his friend, relative and banks. Such source is also limited, so there is financial difficulty from expansion and development of the business. एकल व्यापारी का जो पहला दोष है वह है मर्यादित भांडवल. एकल व्यापारी व्यवसाय में अकेला मालक होता है. भांडवल तैयार करने के लिए या फिर लगाने के लिए वो उसकी क्षमता बहुत मर्यादित होती है. वह अपने मित्र से, जो रिलेटिव्स है, बैंक से मदद लेके भांडवल की प्राप्ति करता है. उसमें बहुत मर्यादाएं पड़ती है.
एक विशिष्ट मर्यादा के बाहर जाकर व्यवसाय का विस्तार करना या फिर विकास करना, उसमें बहुत ही मर्यादा इसको आती है। इसलिए फर्स्ट लिमिटेड कैपिटल यह डीमेरिट्स माना गया है। लिमिटेड मैनेजरियल second is limited managerial skill. A sole trader has to manage and control the business. He may or may not qualification and experience. He may not have expert managerial and organizing ability. Due to limited capital, he may not appoint manager staff. मर्यादित व्यवस्थापकीय कौशल्य, इस व्यवस्थापन में वह अकेला व्यवसाय को नियंत्रित करता है। उसमें जो पात्रता, जो अनुभव, व्यवस्थापकीय क्षमता, ऐसा नहीं, बहुत कम भांडवल में यह सभी मुमकिन नहीं होता। तो यह एक दोष माना गया है। थर्ड इज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। The liabilities of sole trader is unlimited. There is no distinction between personal asset and business asset, so he cannot be separate from his business. His business liabilities need to be paid by selling his private property if required. Fourth is lack of stability. Existence of sole trading concern is totally dependent on the extension of sole trader death, insanity or insolvency of the sole trader affect the experience of the business. एकल व्यापारी संगठन में उसका अस्तित्व जो है वह खुद एकल व्यापारी पे, मतलब व्यक्तिगत व्यापारी पे निर्भर रहता है। उसका मृत्यु होना या फिर पागलपन या फिर दिवालखोर, यह व्यापार के अस्तित्व पे विपरीत परिणाम करते हैं। फिफ्थ इज लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन. डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन, but sole trader is involved in all activities of his business such as buying, selling, accounting, etc. He has to play multiple roles. So it is said that he is jack of all trades, master of none. विशेषीकरण का अभाव, श्रम विभागनी से यह विशेषीकरण होता है। एकल व्यापारी जो है व्यवसाय में सभी कार्य पार करने होते हैं, जैसे खरीदी, बिक्री, अकाउंटिंग। विभिन्न प्रकार की भूमिका वह उसको निभानी पड़ती है। सिक्स्थ इज not suitable for large scale operation. Sole trader conduct his business on small scale. Generally, he operates in local market. Sole trading concern is one man show. Business cannot be extended beyond a certain limit. Sole trading concern is not suitable for large scale business. बड़े उद्योग की तुलना में यह उपयुक्त नहीं माना जाता। एकल व्यापारी संगठन में व्यवसाय बहुत ही छोटे प्रमाण में या फिर बहुत कम प्रमाण में किए जाते हैं। एकल व्यापारी जो है यह एक पात्री प्रयोग के जैसे काम करता है। एक विशिष्ट मर्यादा में उसका व्यवसाय का विस्तार उसे करने का नहीं आता। यह व्यवसाय जो है बहुत बड़े प्रमाण में चलाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इसमें आज हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न प्राइवेट सेक्टर में आज हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब STC सोल प्रोप्राइटरशिप
के बारे में जानकारी ली। नेक्स्ट वीडियो में हम भागीदारी संस्था यानी कि पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानकारी लेंगे। सो थैंक यू।